الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكاف 10 في رمضان كان كحجين وعمرتين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 عیسوی سن 2022 کا رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے اور تیسری جمعۃ المبارک ہے. آنے والی رات 21ویں رات ہے جو لیلۃ القدر میں جس کا شمار ہوتا ہے. اسی مناسبت سے قرآن کریم کی سورہ قدر پوری اور لیلۃ القدر حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف تو قرآن مقدس میں سے ایک سورہ شریفہ جس میں لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے گئے، اور دوسرے نمبر میں آیت کریمہ کا ایک جز جس سے اعتکاف ثبوت ہوتا ہے، اور 2 روایتوں میں سے ایک روایت لیلۃ القدر کے بابت اور ایک روایت اعتکاف کے بابت ذکر کی ہے. رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت وہ گزر چکا، دوسرا عشرہ مغفرت وہ آج ختم ہو رہا ہے. آئندہ آنے والا کل سے سنیچر سے جو عشرہ شروع ہوتا ہے وہ جہنم کے آگ سے آزادی کا ہے. رمضان المبارک میں اب تقریباً 4 امور باقی رہ گئے. ایک لیلۃ القدر، دوسرا اعتکاف، تیسرے نمبر میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی، چوتھے نمبر میں شب عید اور عید کے دن کے احکام. اس پر رمضان ختم. لیلۃ القدر، قدر کا معنی عظمت، ذی مرتبت. قدر کا ترجمہ اندازہ لگانا. کیا مطلب؟ اس ایک رات کی عبادت جس کو ہاتھ لگ گئی، عظمت والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، لہذا اس کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. جس کو ہاتھ لگ گئی وہ اللہ کے یہاں قدر و منزلت کا مالک بن جاتا ہے. اندازہ لگانا، اس رات میں سارے معاملات اور امور طے کیے جاتے ہیں. یہ دونوں لفظی ترجمے ہیں. اصطلاح شریعت میں رمضان المبارک کے
अखीर अशरे की मुबारक रातें जिसमें इबादत का एहतमाम करके और इबादत करके आदमी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करके अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बंदा बन जाता है। इस वजह से इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लोहे महफूज से बैतुल इज्जत में यकबारगी पूरा का पूरा लैलतुल क़द्र में उतार दिया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हम ही ने कुरान मुक़द्दस को लौहे महफूज से बैतुल इज्जत आसमानी दुनिया पर यकबारगी लैलतुल क़द्र में उतार दिया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, एहतिमाम शान के लिए अल्लाह इस्तिफ़हाम कायम करते हुए अपने नबी जी से मुखातब हैं, आपको मालूम है लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। इस रात में क्या होता है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, रूहुल कुद्स हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के समेत। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हर सलामती वाले मामले को लेकर और सुबह सादिक तक अल्लाह का फैज़, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें आसमान से जमीन पर बराबर उतरती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह की खुशनुदी के लिए लैलतुल क़द्र में इबादत के लिए खड़ा हो जाए, ईमान और सवाब की नीयत के साथ, उसकी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह अल्लाह माफ फरमा देते हैं। ये रात कैसे नसीब हुई? एक रिवायत ये है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु इसराइल में से किसी आबिद का तज़किरा किया। 1000 साल तक अल्लाह की ऐसी इबादत की कि पल झपकने के बराबर नाफरमानी नहीं हुई। सहाबाए किराम को कसरती इबादत पर ताज्जुब हुआ। एक रिवायत में यह है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु इसराइल के एक मुजाहिद का तज़किरा किया। 1000 साल तक राह खुदा में जिहाद करता रहा। हज़रात सहाबाए किराम ने इस कसरती इबादत पर ताज्जुब किया। एक और रिवायत में है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु इसराइल के 4 बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत अय्यूब, हजरत ज़करिया, हजरत यूशा, हजरत हिज़कील अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया। हजरत ज़करिया, हजरत अय्यूब, हजरत हिज़कील और हजरत यूशा, इनमें 3 का तो सराहतन कुरान में तज़किरा है। अल्लाह के पैगंबर ने जिक्र किया 80 बरस अल्लाह की ऐसी इबादत की, बहुत जबरदस्त इबादत। तो सहाबाए किराम इन सारी बातों को सुनकर मुताज्जिब हुए। सहाबाए किराम के इबादत का शौक और वलवला और अंदर की लगन को देखकर अल्लाह ने पैगंबर पर सूरह क़द्र उतारी और फरमाया, देखो सहाबाए किराम ने यह सोचा कि हमारी उम्र ही 60 से 70 के दरमियान। आका ने फरमाया, अमारु उम्मती मा बैन 50 इला 60 अव इला 70, 60 से 70 के दरमियान के हमारी उम्र। बालिग होने के बाद एक पल झपकने के बराबर भी नाफरमानी न हो मौत तक, फिर भी हमारी उम्र छोटी, तो हम जन्नत के दर्जों के एतबार से तो उनसे नीचे रह जाएंगे। आका पर यह सूरत उतरी जिसमें फरमाया, एक रात अल्लाह तुमको देता है, इसके इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने के 83 बरस और 6 महीने बनते हैं। खुश नसीब है वो इंसान इसको जिंदगी में एक रात नसीब हो गई, तो 83 बरस और 6 महीने से ज्यादा जमाना इबादत में गुजारने का सवाब मिलता है। सहाबाए किराम के शिद्दत इश्तियाक पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर की उम्मत पर पैगंबर के वास्ते से इनामात अता किए हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये जबरदस्त इनाम जो उम्म साबिका को नसीब नहीं हुआ, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। सहाबाए किराम में से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये रात कब है? आका ने फरमाया, रमजान के महीने में तलाश कर लो। अब 30 दिन, साल के 11 महीने एक तरफ, साल के 12 महीने में से 11 महीने एक तरफ, एक महीना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन देखो उम्मत की हालत, हजरात साहबाए किराम, पूरी उम्मत पर जबरदस्त इनका इंसान है। हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, अल्लाह के नबी फिर भी कोई खास? आका ने फरमाया, रमजान के आखिर अशरे में तलाश कर लो। 365 दिन में से 355 दिन एक तरफ, खाली 10 दिन रह गए। कुर्बान जाए अम्मे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जात पर, उम्मत के लिए कितनी सहूलत हो गई। आका से फिर पूछा, फरमाए रमजान के महीने की आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रातें कौन सी? 21, 23, 25, 27 और 29। अब कितना सस्ता हो गया। 360 दिन एक तरफ, खाली 5 रातें हैं। 5 रातों में इसको तलाश करो। आखिर अशरे की ताक 5 रातें। आमतौर पर 27 में नसीब हुई, इस वजह से एक जमात का कहना यह हो गया कि 27 मुतय्यन नहीं है, और एक रात को खास क्यों कर ले? 5 रातें ही इबादत का इंतमाम क्यों न हो? 21, 23, 25, 27 और 29। अगर ये रात किसी को मिली तो क्या करे? एक दुआ तो हदीस से साबित है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, आप माफ फरमाने वाले हैं, आप माफी को पसंद फरमाते हैं, मुझे माफ कर दो। अपने अंदाज में भी बोल सकते हैं, ऐ अल्लाह, आप माफ फरमाने वाले हैं, आप माफी को पसंद फरमाते हैं, आप मुझे माफ कर दो। अलबत्ता इस रात की कोई मखसूस इबादत कहीं भी साबित नहीं है। अलबत्ता कुरान की तिलावत, नफल नमाज जिसमें सलात व तस्बीह वगैरह आ गई, मगरिब के बाद अवाबिन हो गए, रात को सलात व तस्बीह हो गई, सहरी के वक्त तहज्जुद हो गई, तो 3 नफल नमाज तो हो जाएगी, अवाबिन भी हो गई, इसके बाद सलात व तस्बीह हो गई, और सुबह में तहज्जुद हो गई। अवाबिन की 6 रकात हो गई, सलात व तस्बीह की 4 रकात हो गई, तहज्जुद की ज्यादा से ज्यादा 12 या 8 रकात पढ़ ली, तो नफल नमाज का निसाब पूरा हुआ। कुरान करीम की 3 पारे की तिलावत हो गई, 3 तस्बीह हो गई, 1000 मर्तबा दुरूद हो गया, दुआ हो गई। याद रखो, सारी मुश्किलात का हल दुआओं में है। रमजान में हर मुसलमान, चाहे फासिक फाजिर हो, चाहे वो नेक नमाजी हो, चाहे वो मुत्तकी परहेजगार हो, हर मुसलमान की 65-61 दुआएं कबूल होती है। ये बात दिल के अंदर उतारो, 61 दुआएं हर मुसलमान की कबूलज है। 30 दिन में, 30 रात में, और एक ईद के दिन। अब हमें किसी कुतुब अब्दाल गोश को तलाश करने की जरूरत नहीं, खुद ज कुतुब है, खुद ही अब्दाल है, खुद ही गोश है। एक महीने में 61 दुआएं जिस मुसलमान के कबूल हो जाए, अब क्या रह जाता है? लेकिन कितने हैं जो उठाते हैं हाथ? हमारे पास कोई निजाम है 24 घंटे में दुआ का? जबकि रब ताला आसमानी दुनिया पर आ जाता है, बंदों से बहुत करीब, और 3 ऐलान करता है कोई गुनाहों से माफी चाहने वाला कि माफ कर दूं, है कोई तौबा और इस्तगफार करने वाला, उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई रोजी का तलब करने वाला,
کہ میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا، پریشانیوں میں گھرا ہوا کہ بلاؤں سے میں اس کو نجات دے دوں۔ یہ تو ہر رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے۔ انسان اپنے گناہ اپنے رب تعالیٰ کو گنوائے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کے گھر کھلے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر ایک طرف بیٹھ جائے، پاک صاف اللہ کے دربار میں متوجہ ہو جائے، اللہ مجھ سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو جانتا ہے یعلم السر و اخفی ہے، تو علام الغیوب ذات ہے، مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ وہ توبہ یقیناً قبول ہو جائے گی۔ مانگنا چاہیے۔ روزی کے مسئلے میں کائنات کا ذرہ ذرہ پریشان ہے، کروڑ پتی سے لے کر کے خرب پتی سے لے کر کے ہر بھکاری تک، ہر ایک انسان معیشت کی تنگی کا شکار ہے۔ اب کھڑک پتیوں کے حالات دیکھو، وہ بھی ہائی واویلا پکارتا ہے، کروڑ پتیوں کو ہم نے دیکھا ہے ہائی واویلا پکارتا ہے، کسی ایک بندہ خدا کی زبان سے یہ نہیں نکلتا شکر ہے اللہ کا خدا جس حال میں رکھے۔ دیکھو شکر کرنا چاہیے، مصیبت کا مالک اللہ ہے، فیصلے اس کے سے اترتی ہے، اسباب انسان کے گناہ یہ رزق کی تنگی میں دخل ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم ان الانسان لیحرم الرزق بالخطیئہ، گناہوں سے انسان روزیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک قدرت کا نظام ہے، مانگنا چاہیے۔ ہر رات 3 اعلان ہوتے ہیں، 61 دعا ہر مسلمان کے قبول ہوتی ہے۔ ایک نظام بنا لیں، کم از کم افطار سے پہلے دن میں داخل، کم از کم تہجد کے وقت سحری کھائی ہے رات میں داخل، یعنی کچھ محنت نہ کرنی پڑے، تیار ٹائم ملتا ہے۔ ایک تیار ٹائم کون سا ہے؟ تیار ٹائم مغرب کے وقت افطار سے پہلے تو گھر میں بیٹھا ہے، ہمارے یہاں اکثر گھروں میں افطار کا رواج ہے، اور موقع مل جاتا ہے اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، اور افطار کے وقت تک اللہ ہر بندی کی دعا قبول کرتے ہیں، اور سپہر کی دعا رد نہیں ہوتی، تہجد کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ 2 وقت تو ہاتھ آ ہی گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا دعا کرے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان راتوں میں اس دعا کا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ تو صلاۃ التسبیح ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، قرآن کی تلاوت ہے، 3 تسبیح ہیں۔ ایک تسبیح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک تسبیح ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان دعاؤں کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اخیر عشرہ جو ہے ہم کو گزارنا چاہیے۔ بازار کا ماحول کم ہو، مساجد کا اور گھروں میں عبادت کا ماحول تیز کرنا چاہیے۔ اچھا، اس رات کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عقف کا معنی ٹھہرنا۔ 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اپنے محلے کی مسجد میں سے مسجد کی جماعت خانے کی حدود میں اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے ٹھہرنا۔ میں اعتکاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اے اللہ میرا یہ اعتکاف قبول فرما اور مجھ سے یہ عمل آسان فرما۔ داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہوں، حجامت تمام تر چیزوں سے پہلے فارغ ہو جائے، ناخن تراش لے، مونچھیں بنوا لے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر لے، ماتھے کی حجامت بنوا لے، صاف ستھرا ہو کر اللہ کے گھر میں آ گئے۔ یہ پردہ اور یہ پائپ کوئی معتکف نہیں ہے، اعتکاف کی جگہ پورا حرم مسجد ہے، اور حرم مسجد جماعت خانہ بولتے ہیں۔ اس پورے میں معتکف کہیں بھی ٹھہر سکتا ہے۔ معتکف اعتکاف کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب سے اعتکاف کا حکم آیا ہے زندگی بھر اعتکاف کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، آقا نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، صحابہ نے بھی اعتکاف کیا، پھر آپ خیمے میں آ گئے اور آقا نے فرمایا میں نے لیلۃ القدر کی تلاشی میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، وہ نہیں ملی، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، وہ نہیں ملی، 21ویں رات تھی آج کی رات۔ آقا نے فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کر لے۔ اخیر عشرے کا اعتکاف، اس کے بعد اخیر عشرے کا اعتکاف مشروع ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہاں 1 سال آقا نے اعتکاف نہیں کر سکے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ نے شوال کے مہینے میں 10 دن کی قضا کی تھی۔ اعتکاف نہیں ہو سکا تھا تو آپ نے شوال کے مہینے کے اندر اس کی قضا کی تھی۔ اعتکاف سے کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے یا رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے، لہذا بہت سستا سودا ہے۔ اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کرنے پر یہ فائدہ حدیث شریف میں ہے، کوئی آدمی رمضان کے علاوہ خالی 1 دن کا اعتکاف کرے اس کو 10 سال کے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں تاک راتوں اخیر عشرے کا پورا اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کہاں کیا جائے گا؟ جو مسجد شرعی ہے، جیسے یہ ہماری مسجد شرعی، خالی جنازے کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہو اور 5 وقتہ نمازیں نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اعتکاف محلے کی مسجد میں افضل ہے، اولا ہے۔ یہ مسئلہ خوب دماغ میں بٹھاؤ، اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف افضل ہے، سب سے افضل اعتکاف محلے کی مسجد۔ پورے سال مسجد کی آبادی کی فضا رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نور مسجد کے محلے والے اگر اعتکاف طیبہ مسجد میں کریں تو اعتکاف نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے، افضل یہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی افضل کو چھوڑ کر مفضول پر عمل کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے محلے کی مسجد سب سے پہلے نمبر میں پسند کی جاتی ہے، یہاں اعتکاف کرے۔ دوسری محلے والے اگر اپنے مسجد میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی ایک جماعت ہو، 3 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، تاکہ نمازوں میں خوش و خضوع پیدا ہو، عبادت میں دل لگے۔ اکیلا آدمی رات کو مسجد کے اندر تنہائی میں ہو، جس کو خلوت محبوب ہو اس کے لیے تو اچھا عمل ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر جو آدمی تخلیہ نہ کرتا ہو، ایکاد گروہوں میں نہ رہتا ہو، یکسو نہ ہو، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے 3 یا 5 7 آدمی اگر ہو جائیں، 4 6 8 بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک جماعت بن کر کے اگر اعتکاف کیا جائے، اور جماعت کا اطلاق 3 سے کم پر نہیں ہوتا، 3 یا 3 سے زیادہ آدمی مل کر کے اعتکاف کرے۔ 20 تاریخ کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے اپنے معتکف میں آ جانا ہے۔ اب مسجد سے عید کا چاند معتبر طرق سے ثابت نہ ہو جائے تب تک معتکف سے باہر نہیں نکل سکتا۔ 3 صورتوں میں معتکف اپنے اعتکاف گاہ سے باہر جا سکتا ہے۔ ایک طبعی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اللہ کے گھر پاک ہیں، ناپاک جگہوں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، لہذا طبعی ضرورت ہے پیشاب پاخانہ کے لیے مسجد سے باہر جائے۔ اگر کسی کو بیڑی کی عادت ہے، باوے کی عادت ہے، پان کی عادت ہے تو قضاء حاجت جاتے وقت یہ ضرورت پوری کر لے۔ اگرچہ مسجد کے اندر
एहतिकाफ की नीयत कर लेने के बाद जायज और हलाल चीजें खा सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर बीड़ी नहीं पी सकता, मस्जिद में हुक्का नहीं पी सकता, मस्जिद में धतूरी नहीं पी सकता। अब ऐसी चीजों के लिए जब पेशाब पाखाने की जरूरत पूरी करने के लिए जाए, उस वक्त इन जरूरतों से फारिग हो जाए। वुजू करने के लिए जाना है, मस्जिद के बाहर जाएगा, ये तबई तकादे के पेश नजर जा सकता है, लेकिन कम से कम वक्त इसमें लगना चाहिए। शरई जरूरत जिस मस्जिद में एहतिकाफ की है वहां जुमा नहीं होती, तो मस्जिद जामे या जिस मस्जिद में करीब की जुमा होती है वहां जुमा पढ़ने के लिए जा सकता है। मुअतकिफ ने एहतिकाफ कर लिया, मोहल्ले में किसी की मौत हो गई, जनाजे की नमाज के लिए नहीं जा सकता। कोई बहुत बीमार हो गया पड़ोसी, इयादत के लिए नहीं जा सकता। लेकिन अल्लाह की कुदरत करीमी देखिए, मोहल्ले में कोई बीमार पड़ा, इयादत का सवाब बगैर जाए हुए इसको मिलता है। अल मुअतकिफ यअतकिफु दुनूब व यजरी लहू मिनल हसनात तामिलुल हसनात कुल्लिहा, बगैर नेकियां किए हुए नेकियां उसके नामा अमल में लिखी जाती है। कोई मर गया, जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता, लेकिन उसके नामा अमल में जनाजे की नमाज लिख दी जाती है। यह वाहिद एक एहतिकाफ है कि बगैर नेकियां किए हुए भी नेकियां उसके नामा अमल में लिखी जाती है। कोई इज़्तिरारी कैफियत पेश आ गई, खुदा न खास्ता कोई आसमानी सुल्तानी आफत आ गई, अब मस्जिद से भागना पड़ा, तो मुअतकिफ मस्जिद से निकल जाएगा और करीबी मस्जिद में जाकर एहतिकाफ में बैठ जाएगा। कोई भी आसमानी सुल्तानी आफत आ गई जिसकी वजह से इस मस्जिद में ठहर नहीं सकता, इसी हालत में दूसरी मस्जिद में करीब की चला जाए, वहां जाकर एहतिकाफ कर ले, एहतिकाफ नहीं टूटेगा। तो तीन तकादों पर आदमी मस्जिद से मुअतकिफ निकल सकता है, तबई तकादिर, शरई तकादिर और इज़्तिरारी कैफियत। बाकी मुअतकिफ एहतिकाफ गाह के अंदर रहेगा, अपना खाना पीना रहना सहना सब मस्जिद के अंदर एहतिकाफ की नीयत के बाद ये सारी चीजें हलाल हैं, जायज हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ममानात नहीं। बिला जरूरत फालतू कोई बातें दुनिया की न कहें, यहां बैठकर इबादत में जब तक दिलबस्तगी है इबादत में मशरूफ रहे, अपने लिए और उम्मत के लिए दुआएं करें। यह अल्लाह का मेहमान खाना है, यह अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह उसका मेजबान है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसको हर साल एहतिकाफ नसीब होता है। तो मोहल्ले की मस्जिद पसंद करे, अपना मोहल्ला साल भर मोहल्ले में जितनी नेकी वजूद में आएगी इसका सवाब मुअतकिफ को मिलेगा। ये जहन में रखे। आमतौर पर लोग खाने पीने खिदमत के बहाने से किसी एक जगह नज्म होता है तो वहां चले जाते हैं, ये चीज इस दर्जे में मुनासिब नहीं है। पहले अपने मोहल्ले की मस्जिद का हक है और अफजल एहतिकाफ इसी में है, लिहाजा थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर लें। और खिदमत करने वालों को चाहिए कि मुअतकिफ अल्लाह का मेहमान है, उसकी खिदमत करें, दिल न चुराए, बल्कि दिल जमाई के साथ खाना पहुंचा दें। दोनों वक्त खाना भी पहुंचाना है और तो कोई मसाइल है नहीं। वो अपना कपड़ा तो साथ में लेकर आता है, कपड़े की धुलाई के लिए 2 दिन 3 दिन पर जब वो बदलता है, अल्लाह के घर में रहते हुए कपड़ा मैला भी नहीं होता। ये काम करने के लिए इसको एहतिकाफ कहा जाता है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज सदक़तुल फित्र। आमतौर पर इंसान कितना भी इबादत का एहतिमाम करे, रोजा रखकर, तरावी पढ़कर, कुरान की तिलावत कर कर, रमजान का एहतराम कितना भी मलहूद रखे, लेकिन लग़्व कलाम और लग़्व काम ये रुक जाते हैं। लग़्व कलाम बेकार बात, लग़्व काम बेकार अमल। लग़्व किसे कहते हैं? न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा। आदमी की जुबान से चल ही जाता है कुछ, 2-4 जमा हुई, इनको छोड़ करके और से बात का आगाज होता है जिसको गीबत कहते हैं। तो कुछ गीबत है, कुछ चुगली है, कुछ खिलाफ अवला चीजें हैं,
जो रोजे की शान के मुनाफी हैं, कितना भी एहतमाम करो कुछ न कुछ वाक़ई हो ही जाता है। अब रोजों का फितरा दे दो। दूसरा, ईद के दिन मिस्कीनों को, मोहताजों को, गरीबों को, फकीरों को मांगने से बेनियाज कर दो। ईद के दिन तो न मांगे, इस्लाम की शान मजरू होती है। इस्लामी तालीमात और उसकी हिकमतों पर गौर करो। इस्लाम के दिन फकारा, बसाकीन और मांगने वालों को नहीं मांगना चाहिए। सदक़तुल फित्र की एक वजह यह है, उगनुहुम आनि सवाल, अरे भिखारियों को सवाल से बेनियाज करो। ईद के दिन तो भीख न मांगे ये लोग, इसलिए इस्लाम की हैबत खत्म होती है। इसलिए इस्लाम का ज़ाब्ता यह है, आइंदा जुमा में ईद की हकीकत पेश की जाएगी। पैदल ईदगाह जाए, एक रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से वापस आए। इस्लाम की शान और शौकत और इस्लाम के हैबत और अजमत कि ये बहुत है। जिधर देखो उधर जो है मुसलमान मुसलमान नजर आ रहा है। एक रास्ते से ईदगाह जाए, दूसरे रास्ते से वापस आए, चलने में तकलीफ उठाए, मेहनत मुजाहिदा बर्दाश्त करे। इस्लाम की शौकत और इस्लाम की शान का मुजाहरा अल्लाह करवाता है। इस्लाम की शान का मुजाहरा करो। इस दिन भीख मांगने से इस्लाम की शान मजरू होती है। इस्लाम की नीति यह है कि पहले इन फकीरों को, इन भिखारियों को, इन मांगने वालों को सवाल से बेनियाज कर दो। और उसका तरीका यह है कि तुम्हारे रोजों का जो फितरा निकलता है वो उनके घर जाकर पहुंचा दो, ताकि ईद के दिन तो ये न मांगे और ईद के दिन उनके घर भी खाना बने और मालदार से पहले गरीब की ईद हो जाए। ये दो वजह से सदक़तुल फित्र रखा है। कौन निकालेगा? जो मालदार साहिब निसाब है उसके ऊपर फितरा निकालना वाजिब है। इसके अलावा खुद आदमी मालदार साहिब निसाब नहीं है, लेकिन जीवन जरूरियात से वधारे की चीजें उसके पास पड़तर है। पड़तर मसलन 3 घर है, 2 वापरता है, एक ऐसे ही पड़ा है, वो घर पर फितरा नहीं है। माइंड से समझो, एक वधारे की, जीवन जरूरियात से वधारे की वस्तु पड़ी है, गोडाउन पड़ा है दुकान के अलावा। इसी तरह फुक़हा ने तो यहां तक लिखा है कि 5 जोड़ी पहनने के कपड़े से वधारे के फालतू कपड़े पहने पड़े हैं। वो बर्तन जो घरों में इस्तेमाल में वरस में भी एक मर्तबा नहीं आते, खाली सजाया है घर में, इस पर ज़कात नहीं है। लेकिन क्या मतलब? ये दाखला तरीके, फॉर एग्जाम्पल, मसलन समझाने के लिए कहा। लोग क्या कहते हैं कि बर्तनों का फितरा निकालते हैं। बर्तनों का थोड़ा फितरा होता है, मकान का थोड़ा फितरा होता है। समझो, उलमा ने ये बात एग्जाम देकर के समझाया, दाखला देकर। ये वधारे का सामान है। अब वधारे का सामान पड़तर है, खुद ज़कात खाता है। बहुत से मांगने वाले ऐसे भी हैं, ज़कात लेते हैं, लेकिन उसके पास देखो तो घर सजे हुए हैं। बहुत लोग के घरों में तो टीवियां भी है। खैर वो एक दूसरा उन्वान है। फालतू 15,000 का मोबाइल है। यूं 1500 का मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो 15,000 का इस्तेमाल करता है। इसलिए इस्लाम का नुक्ता समझो, तुम्हारा खाना नेक लोग खावे। चाहे तुम ज़कात से खिलाओ, चाहे तुम सदके से खिलाओ, चाहे तुम लिल्लाह खिलाओ, लेकिन नेकों के पेट में डालो, वो नेकी करेगा तो फायदा हमें होगा। और अगर बुरों को खिलाया तो जितनी बुराइयां उससे वजूद में आएगी, इसके बराबर गुनाह तुमको भी होने वाला है। ये एक नुक्ता है इस्लाम का। मैं कुछ इस्लाम के निकात और हिकम बयान करता हूं, क्यों और क्या। अगरचे वो मकसूद नहीं, लेकिन हिकमतों पर मबनी है सारी चीजें। तो 2 वजह बयान की, अपनी तरफ से निकाले और हर बालिग मर्द औरत पर अपना है। लेकिन घर का वडील है जो पूरा घर का निजाम चलाता है, अपनी छोटी नाबालिग औलाद की तरफ से निकालेंगे। खुदा नखास्ता अल्लाह हिफाजत करे, किसी की पागल औलाद है उसकी तरफ से भी निकालना है, कोई अपाहज माजूर औलाद है उसकी तरफ से भी निकालना है। सब जितने माथे है, माथा दीठ फितरा है, माथा दीठ फितरा है। कितना निकालना है?
आधा सा गेहूं, 1 सा जौ, बाजरा, मकाई वगैरह। आधा सा कितना होता है? 1 किलो 540 ग्राम, 644 मिलीग्राम। अब इन झंझटों में कौन पड़ेगा? एहतियातन 1.25 किलो गेहूं निकाल दो, एहतियातन। लेकिन हम नेट वजन आपको ये बताते हैं, 1 किलो 546 ग्राम, 644 मिलीग्राम एक फितरा गेहूं का हुआ, अगर गेहूं से देते हैं। अभी हमने तखमीना लगाया, ऊंचे में ऊंचा गेहूं का एक फितरा 70 रुपए का बनता है। अगर गेहूं नहीं है, पैसे देता है तो 70 रुपए, जौ से देता है तो 3.5 किलो, जिसका नेट वजन कीमत के एतबार से 100 रुपए बनता है। खजूर देता है तो 3.5 किलो, 100 रुपए वाली है तो 350 रुपए हो जाएंगे। अगर किशमिश से देता है तो 1000 रुपए एक फितरा। अपनी तरफ से, अपनी छोटी औलाद की तरफ से, हत्ता के फुकहा ने लिखा है, ईद की रात में बच्चा पैदा हुआ, उसकी तरफ से भी ईदगाह जाने से पहले पहले जो औलाद पैदा हो गई घर में, उसके ऊपर से भी फितरा है। कब निकालने का है? ईद की चांद डिक्लेयर हो जाने से ईदगाह जाने तक। ईद की चांद साबित हो गई मगरिब में, तो ईदगाह जाने तक। अब इतना चौकस आदमी कौन, इतना चौकस पढ़ने से कौन अमल कर सकता है? और फिर फकीर को तलाश करना, और फिर वो भीख न मांगे, और ईद के दिन उसके घर भी खाना बने, ऐसी सारी चौकसाइयों के लिए हृदय के पास वक्त नहीं होता। साहबा का उम्मत पर जबरदस्त एहसान है। अल्लाह के नबी से सवालात कर लिए, हमारे लिए आसानी हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर 3 दिन पहले दे देते थे, यानी 27 में रोजे से फितरा दे देते थे, 27 में रोजे से फितरा दे देते। बाद साहबा 10 दिन पहले दे देते थे। मालूम क्या हुआ? आखिर अशरे में दे दे। लेकिन ये 2 इल्लतों के पेश नजर देना चाहिए। 4 दिन पहले की बात है, एक साथी है, जब हम दीन में चंदा करने के लिए कुछ दुकानों पर निकलते हैं, गए तो कि मौलवी साहब, हिंदू मांगने वाले वाघरी वगैरह वाघरणों ने 350 किलो गहूं वजन करा गए। अभी कितने? 350 किलो गहूं। एक छोटी सी फैमिली का सालाना गेहूं हो गया 350 गेहूं। 3-4 आदमी की फैमिली हो तो वर्ष का अनाज हो गया। एक आदमी ने कहा 150 किलो मेरे यहां फुला वजन करा गए मांगने वाले। अब इस्लाम का नुक्ता नजर देखो, मांगने वाले का हक है। अब मसाइल फला तनहर, वागरी हो, डेढ़ हो, हरिजन हो कि भंगिया हो, मांगने वाले का हक है। लेकिन हुकूक की अदायगी के तरीके बहुत सारे हैं। ज़कात तो नहीं दे सकते, मन्नत का तो नहीं दे सकते, फितरे का तो ना दे, लिल्ला तो दे दे, इसे कौन मना करता है? जायज है। अलबत्ता सदक़तुल फित्र में भी फुक़हा ने गुंजाइश रखी है कि अगर ये मांगने वाला है, लेकिन ये लोग तो बिजनेसमैन है, ये तो धंधा करते हैं, वो गेहूं घर में रखकर खाते थोड़े हैं। जैसे हम मदरसे वाले गेहूं वसूल करते हैं तो बेचने के लिए थोड़े होते हैं। मुझे मेरा मालूम है 60 खांडी गेहूं चाहिए। अब हमारे तो खेत है नहीं मदरसे वालों के कि इसमें से खेती करके 60 खांडी गेहूं लाएंगे। उम्मत से लेते हैं 30 खांडी उम्मत गेहूं देती है और 30 खांडी बाजार से खरीदने पड़ते हैं। तो आप उन मदारिस को तलाश करो जहां अनाज गल्ला बिकता नहीं है और जिनको जरूरत रहती है। एक दाखला है, एक मैंने मिसाल दी आपको, करने वालों के लिए काम है। हाँ, अलबत्ता आपका वुसाते ज़र्फी है कि चलो ने रमजान के महीने में भिखारी भी खावे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कोशिश इस बात की करनी चाहिए जो आका ने फरमाया। हिकमत क्या है? उस दिन तुम्हारे मुसलमान गलावा और मुसलमान फकारा के घर में भी खाना बनना चाहिए, इसकी कोशिश करो। अब्दुल्ला इब्न उमर से किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? 3 दिन पहले, ताकि गरीब आदमी भी ईद की तैयारी करे। अब कौन गरीब आदमी रात को ईद के दिन रात ईद की रात को बिछाना, ईद की जरूरियात को पूरी करने के लिए आज को कैसे निकलेगा? उसके बच्चों के कपड़े तलाश करने के लिए, उसके घर के खाने के लिए। इसलिए बेहतर यह है एडवांस दे दो ताकि उसके घर का निजाम हो जाए। खाली मालियत के सिस्टम मुसलमानों में
इंफाक के बाबत सही हो जाए तो अल्लाह की कसम पूरे वर्ल्ड में कहीं मुसलमान गरीब नहीं रह सकता है। ये नूर नगर का एक एरिया है दाखला तरीके, इसमें 150 मकान है। अब हर एक साथी को मालूम है कि इसमें से 25-30 मकान ये हैं, 25-30 मकान ये हैं, 100 मकान इस कैटेगरी के। 3 कैटेगरी होती है, आला औसत अदना, और इनमें मुस्तहिक कितने हैं। अब इनमें से 15 जवान खड़े हो जाए और कैलकुलेट कर ले तो क्या पूरा मोहल्ला साल भर अनाज के बाबत किसी की भीख मांगेगा? ये करने के काम है और मुस्लिम नौजवानों को इसकी फिक्रें करनी चाहिए। सदकतुल फित्र रासन यमुन हो व यली अलैहि। मालदारों को एक मशवरा फुकाहा देते हैं कि गेहूं पर लगे न रहे। देखो गरीब का फायदा किसमिस में है, अल्लाह ने दिया है तो 70 रुपये के बजाय 1000 रुपये वाला पसंद करे। घर में 7 आदमी है, 7000 रुपये फितरे की नीयत से दे दे। खजूर वाला पसंद करें, घर में 7 आदमी है, 7 तेरी 2100 रुपये दे दे। ये मालदारों को मशवरा दिया। मुतवस्सित दर्जा के लोग अनाज देना चाहता है तो ये तरतीब है, और उसकी कीमत देना चाहता है तो ये तरतीब है। ये हो गया सदकतुल फित्र। 3 चीजें हो गई, एक लैलतुल क़द्र, दूसरा एतिकाफ, और तीसरा सदकतुल फित्र। इस मुतबर्रक महीने में आने वाले 10 दिन में इन 3 अमलों से हमको सामका पड़ने वाला है। ये हमारे 10 दिन का जुज़्वे लाबुद्दी है, लायनफक है, यानी इसके बगैर हमको छुटकारा नहीं। इसीलिए मैंने सादी जुबान में उर्दू अदबी माहौल से हटकर के बात आसानी से समझ में आ जावे, इसलिए चंद बातें अमल से ताल्लुक रखती है और ताजा ताजा अमल का जमाना है, और प्रैक्टिकल भी कर लेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने ये मसला जिक्र किया, इसका वक्त मशरू ईद का चांद साबित होने से ईदगाह जाने से पहले पहले तक है। इसमें अदा कर दे। अगर किसी आदमी से भूल हो गई या अदा नहीं कर सका तो ईद के बाद भी अदा कर सकता है, लेकिन नफली सदके का सवाब मिलेगा, सदकतुल फित्र की अदायगी का सवाब नहीं मिलेगा। तो बड़ी सदकतुल फित्र की अदायगी का क्या सवाब है? वो रोजों की खामियां और रोजों की कोताहियां जो दूर होने वाली थी वो नहीं होगी। इसलिए एडवांस में अदा कर देना बेहतर है, और मुस्तहिक की खराई करके। बड़ी ये मसला बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जो भीख मांग करके ज़कात इकट्ठी करता है वो उस पर भी सदकतुल फित्र तो लाजिम होता है, उस पर भी सदकतुल फित्र। अब मान लो इस फैमिली ने 350 किलो, छोटी फैमिली हो, और पूरे साल का गेहूं जमा कर लिया, अब दूसरे दिन भी वो तो मांगने जाएगा काश आए फकीरी लेकर, तो लोग उसमें भीख डालने वाले हैं, हालांकि उस पर फितरा वाजिब है और ये फितरा जमा कर रहा है। लोगों का एक निजाम होता है, मांगने वालों का भी अजीब गरीब, पूरा कैलकुलेट करके सारा साल भर का मांग लेते हैं। उनके यहां भी निजाम बने हुए होते हैं, क्या मांगना, किन से मांगना, कैसे मांगना, उसकी एक तरतीब होती है। पैसों के एतबार से, अनाज के एतबार से, कपड़ों के एतबार से खैर देना चाहिए। अल्लाह ने दिया है, वसाअत है, हैसियत है। अल यदुल अलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ के मुकाबले में। हमेशा एक मानसिकता रखनी चाहिए, और अल्लाह रोजी का निजाम इंसान की मानसिकता पर उतारता है। तयशुदा बात है, अभी तफसीर में आया था 2 दिन पहले। आप यूं कहें मैं खुद कमाऊं, मैं खुद मेरा गुजरान करूं, अल्लाह ऐसी रोजी देगा। आपकी नीयत यह है मेरे माँ बाप का भी हक है, मेरे भाई भी कमजोर है, मेरी बहनें भी कमजोर है, उसका भी मुझ पर हक है, थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि इनको भी दूं, अल्लाह उनकी भी रोजी इसके हाथ उतारेगा। और अगर और वसी ज़र्फ़ का आदमी है, मैं अकेला खाऊं, मेरे मोहल्ले के गरीब भूखे रहें, मेरे गांव के लोग भूखे रहें, मेरे इलाके में काम की तरतीब न हो, अगर ये जगन है अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह पूरी नीयतों के मुताबिक फैसला करेगा। और रोजी की तकसीम भी अल्लाह इसी तरह करता है। अगर बड़े जज्बात, बुलंद हिम्मतें हैं तो रोजियों का निजाम भी खुदा इसी तरह करता है। वरना एक गरीब आदमी जो खुद मुस्तहिक के ज़कात हो और उसकी बुलंद नीयतों पर खुदावंद कुद्दूस पूरे पूरे इलाकों की रोजियों का निजाम उसके हाथ से खुदा चलाते हैं।
اور یہ تجربے اور مشاہدے کی باتیں بھی ہیں. لہذا دل بڑا رکھیں. یہ تنگیوں کا وقت ہے، معاش کی تنگی، معیشت کی تنگی. لوگ تھوڑے تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ دستہ ماحول مزاج بن جاتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں، حالانکہ پراپرٹی پڑی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوئی، بزنس تھوڑا اپ ڈاؤن ہوا ہے، اور وہ بھی جو کوٹا ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، ترقی کا معیار پورا نہیں ہوا. اس سال اتنے فیصد بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھا، حالانکہ اسٹاک گوڈاؤن کے اندر اگر اچھی قیمت آئی تو 2 سال کا پڑھے ہے، لیکن پھر بھی ہائی واویلا ہائی واویلا ہائی واویلا. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر حال میں شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے. تنگیوں میں بھی خدا بھی چلائے گا اور راحتوں میں بھی خدا بھی چلاتا ہے اور چلائے گا، اور اس میں کوئی طے شدہ بات ہے. قرضوں کے ساتھ بھی خدا نفع دیتا ہے اور وسعتوں کے ساتھ بھی خدا چلا لیتا ہے. رزاق اللہ کی ذات ہے اور رزق اوپر سے اترتا ہے، کبھی بھی رزق نیچے سے نہیں آتا، ہمیشہ رزق اوپر سے آتا ہے. تو آپ کہیں گے کھیتی اناج گلے تو زمین سے اگتے ہیں، لیکن اوپر سے برسات ہوگی تو اترے گا نا. اگر اوپر سے برسات نہ ہو تو زمینوں سے کیا اگے گا؟ کچھ نہیں. کنووں سے پانی کیسے آئے گا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. روزی تو آسمان میں ہے اور اوپر سے روزی کا نظام چلتا ہے اللہ کی طرف سے. لہذا کوشش کرنی چاہیے انفاق کے باب میں اچھے سے اچھا اللہ کے راستے میں تنگیوں کے زمانے میں بھی خرچ کی عادت بنائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اب 2 مسئلے باقی رہ گئے ہیں، عید کی رات اور عید کے دن کے احکام انشاءاللہ آئندہ آخری جمعہ میں پیش کیے جائیں گے. آج اعلان یہ ہے، ہمارا جامعہ دارالعلوم حسنیہ کا چندہ مسجد کے اندر نماز سے فراغت کے بعد ہے. خرچ، اخراجات، قرضے ہمیں معلوم ہے، 1.25 کروڑ سے زائد کا قرضہ ہے اور آئندہ کے خرچ کے لیے بھی مسائل ہیں. لہذا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے نماز سے فراغت کے بعد دارالعلوم حسنیہ کا بھرپور تعاون فرماتے جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم حضرات، رمضان کا یہ آخری سے پہلا جمعہ ہے. روزے کی حالت میں آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے مانگے، خصوصاً ملک کے بگڑے ہوئے حالات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے امن و سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے. ایک وقت تھا جب نماز ہو جاتی تھی تو مسجد کے گیٹ کے پاس ہندو مرد اور عورتوں کی لائنیں لگتی تھی اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں. وہ اپنے پانی میں پھونک مرواتے تھے، جھاڑا ڈلواتے تھے. آج وقت یہ آ گیا کہ یہ غیر مسلم ہماری مسجدوں کے مینار توڑ رہے ہیں، ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اسی ہندوستان کی بات ہے. اسی ہندوستان میں ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کے جھاڑ پھونک مسجد کے نمازیوں سے کرواتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی دعائیں رد کبھی اللہ نہیں کرتا، یہ اللہ کے لوگ ہیں. آج بالکل ماحول بگڑ چکا. اسی لیے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، اگر مسجد کے دروازوں پر آج غیر مسلم کوئی بھکاری مانگنے آئے تو ہم ₹2 ₹5 ان کو بھی دے دیا کریں، تاکہ پھر سے خدا بند قدوس کے دربار میں یہ عمل پسند آ جائے تو وہ فضا پھر سے ہندوستان میں پیدا ہو جائے. کہ نفرت کے ماحول کو محبت میں بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل ضرور مسلمان کی ذات سے ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے محبت اور اخلاق حسنہ کا اظہار ہو. اللہ توفیق عطا فرمائے.